Hello students. Next, continue in that general sources of what secondary information. Right? There are various sources of what secondary information. Up to 15 we have to see in last lecture. Now we continue in that 16th one, that is what monthly bulletin of what RBI. Right? RBI publish monthly bulletin. Right? That is Central Statistical Organization. Right? It will provide all India data on what, that is indices, prices, exchange rate, balance of payment, right ना, इन सब की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आरबीआई प्रोवाइड करेगी कि एक्सचेंज रेट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, राइट. नेक्स्ट वन दैट इज पब्लिकेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, राइट. जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, जो टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, राइट ना, तो दे आर आल्सो पब्लिश्ड टेस्ट मार्केट्स, marketing rating indices of towns of India, consumer indices of markets, means consumer कैसे buy करते हैं क्या. तो these informations providing by what advertising agencies. Next one that is other publications. In that first one that is weekly bulletin of industrial license, right. weekly bulletin, right. हर एक week में वो publish होगा, right, for import as well as exports. Next one studies of state trading corporation, right. State trading corporation, they are also providing publications. Commodity reports means कौन सी commodity की अभी क्या situation है buying and selling की, वो information provide करेंगे. Annual report on currency and finance, right. currency के situations कैसी है, finance market में कौन से rate पर कैसे available है, right ना, वो situations की informations other publications में मिलेंगे. Next one that is Economic Times Intelligence Group, that is ETIG, right. It has a subscription service for providing macroeconomic, sectorial and company level information. Macroeconomics मतलब जो इकोनॉमिक है हमारा, राइट ना, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, राइट ना, ये मैक्रो लेवल के जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, they are providing information related to that for different sectors as well as different company bases. Next one, corporate databases, right. Center for Monitoring Indian Economy publish information on about 10,000 companies. कितनी कंपनीज? टोटल 10,000 कंपनीज की वो लोग यहाँ पर डेटा पब्लिश करेंगे, राइट. नेक्स्ट वन दैट इज इंडस्ट्री एसोसिएशंस. इंडस्ट्री एसोसिएशंस मींस व्हाट, उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन है, जिसमें एसोसिएम है, फिक्की है, राइट ना. They are also publishing different aspects of economy as well as industrial verticals. Industrial के related ये specific यहाँ पर publications होगा. Association as well as FICCI वो इसी के related associations है. Next one that is consultancy firms. There are market में काफी सारे consultancy firms भी होते हैं, right ना. They are also providing information on the forward economy as well as industrial verticals, right. इंडस्ट्री का कैसी सिचुएशन है, इकोनॉमी कैसी सिचुएशन है, वो इंफॉर्मेशन भी वो पब्लिश करेंगे, राइट. नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड बैंक, राइट. तो वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है स्टडी करने के बाद, राइट. वो स्पेसिफिक वर्ल्ड की इकोनॉमी के रिलेटेड होगा, राइट. तो वो डेटा यहाँ से हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट वन दैट इज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, राइट. Now there are various brokerage means ऐसे फर्म्स है, राइट ना. तो वो लोग भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज, इंडिया बुल्स, राइट ना. तो ये जो सब है वो भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं डिफरेंट सेक्टर वाइज, डिफरेंट कंपनी वाइज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज वाइज, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए. तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको एज अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे सोर्सेस है. देयर आर सम इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, राइट. इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी वहां पर एनुअल रिपोर्ट है उसका, राइट. एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनी की इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगी कि कितना सेल्स हुआ, राइट ना. तो वो सभी इंफॉर्मेशन वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की होगा. नेक्स्ट वन दैट इज फर्टिलाइजर्स, राइट. तो उसमें फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स होगा, राइट. उसके अंदर फर्टिलाइजर्स कंपनी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट वन दैट इज केमिकल्स, राइट.
केमिकल एज ऑफ इंडिया, ऐसा उसका नाम है पब्लिकेशन का, केमिकल एज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रिकल, इट्स नेम इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ एन इंडियन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका पब्लिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग। नेक्स्ट टेक्सटाइल्स है, दैट इज इंडियन टेक्सटाइल बुलेटिन एंड अदर इंडस्ट्रीज, उसमें सीमेंट, ग्लास एज वेल एज रबर। तो इन सब के लिए भी स्पेसिफिक पब्लिकेशंस है। तो आप लोग भी जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट ना, उसके अकॉर्डिंगली वो पब्लिकेशंस में आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। तो these are the some specific sources of what secondary information, and this is all about what secondary information. Now next topic that is evaluation of secondary information. जो information गैदर की है, राइट ना, उसका evaluation भी उतना ही मैटर करता है, क्योंकि secondary information means what they already gathered by some other person and that we are directly using in our survey, right ना, या तो research work, right। तो वो डेटा कितने रिलेवेंट है, कितने एक्यूरेट है, राइट ना, दैट आल्सो वी वांट टू चेक एंड देन वी कैन टेक दैट डेटा, राइट। तो उसके लिए सम ऑफ द क्वेश्चंस हमें माइंड में चेक करने मींस रेज करने हैं एनालिसिस के लिए, राइट। तो फर्स्ट फॉर दैट हु गैदर द इंफॉर्मेशन, किसने इंफॉर्मेशन गैदर की है, राइट ना, वो जो इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला प्रॉपर है कि नहीं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के पीछे, कौन सा पर्पस है, राइट ना। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन गैदर, कब इंफॉर्मेशन गैदर की थी, कौन से ईयर में, कौन से टाइम पर, राइट ना, वो भी मैटर करता है। एंड नेक्स्ट वन दैट इज वो जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी कब कब पब्लिश की थी उन लोगों ने, राइट ना, कि कौन से टाइम पर ये पब्लिश किया था, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में वो पब्लिश किया है, वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट वन, हाउ रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कौन थे उसके, राइट ना, जो सैंपल थे वो कौन थे, राइट। एंड पीरियड फॉर विच, कौन से पीरियड के लिए वो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी, राइट, वो भी हमें इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट वन दैट इज वो जो सर्वे किया गया है, जो वो जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, उसमें हर एक इंफॉर्मेशन हर एक टर्म्स जो थी वो केयरफुली एज वेल एज अनएम्बिगुअसली डिफाइन की गई थी कि नहीं, वो भी देखना है कि जो सर्वे किया गया उसके अंदर टर्म्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, राइट, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड जो टर्म्स डिफाइन जो की गई होगी, राइट, अनएम्बिगुअस मींस कंफ्यूजन होने चाहिए नहीं। नेक्स्ट वन, ये जो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन गैदर की गई है उसमें टारगेट पॉपुलेशन कौन था, राइट। अगर उसका टारगेट पॉपुलेशन हमारा टारगेट पॉपुलेशन सेम होगा तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं हमारे सर्वे के अंदर, बट अगर उसका टारगेट पॉपुलेशन हमारा टारगेट पॉपुलेशन डिफरेंट हो जाएगा तो दैट इज मीनिंगलेस, राइट ना। तो टारगेट पॉपुलेशन कौन सा था वो भी देखना है। सैंपल चूजर, उन लोगों ने सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कौन सी टेक्निक यूज की थी फॉर चूजिंग दैट सैंपल, राइट। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स मींस जो सैंपल चूज किया था वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे थे, राइट ना, वो भी यहाँ पर मैटर करता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। सैंपल लिया, उसमें जो पर्सन सिलेक्ट हुए, राइट ना, वो प्रॉपर है कि नहीं, दैट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर प्रॉपर न होगा तो फिर डेटा भी वैसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी उन लोगों ने उसकी प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं। अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगी तो भी उसमें एरर होगी, तो भी प्रॉब्लम होगा उस डेटा में, मींस वो एक्यूरेट डेटा नहीं होंगे। नेक्स्ट वन दैट इज डिग्री ऑफ सैंपलिंग बायस एंड नॉन रिस्पॉन्स बायस, कि सपोज जो इंफॉर्मेशन उन लोगों ने गैदर की उसके अंदर सैंपलिंग बायस, सपोज सैंपल लेते टाइम बायस किया होगा कि चलो उसको नियर में उसको पहचान वाले सैंपल ले लिए डायरेक्टली, राइट, या तो फिर नॉन रिस्पॉन्स बायस, राइट। कई बार कुछ लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, राइट, तो भी वो खुद ही उसके मीन्स अपने वे में वो भर देगा उसकी इंफॉर्मेशन, तो दैट इज नॉन रिस्पॉन्स बायस, राइट ना। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको डेटा एक्यूरेट मिलेंगे नहीं, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज डिग्री ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय रिस्पोंडेंट्स। कई बार जो रिस्पोंडेंट्स है वो मिस रिप्रेजेंट करता है कि माइंड में कुछ अलग होता है, बोलता कुछ अलग है, राइट ना। आप पूछोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसी है तो वो बोलेगा कि भले ही खराब होगी तो भी अच्छा बोल देगा, या तो कोई प्रोडक्ट अच्छी हो उसके बारे में भी खराब बोलेगा, तो दैट इज व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन। ऐसा भी हो सकता है कई बार, राइट ना। नेक्स्ट वन दैट इज
हाउ एक्यूरेटली वाज द इंफॉर्मेशन एडिटेड, टेबुलेटेड एंड एनालिसिस। जो इंफॉर्मेशन उन लोगों ने जो गेदर की है उसको कैसे उन लोगों ने एडिटेड, मीन्स जो डेटा प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करते हैं ना, तो उसके अंदर एडिटेशन होता है, टेबुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो वो कितना एक्यूरेटली हुआ है वो भी यहाँ पर एक पॉइंट मैटर करता है। एंड लास्ट वन दैट इज was statistical analysis properly applied, मीन्स जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई की गई है उस डेटा के ऊपर वो प्रॉपर है कि नहीं, राइट। तो ये सभी इंफॉर्मेशंस, राइट ना, सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस को इवेल्युएट करने के लिए ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस में हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये डेटा कैसे है। अगर इसमें सब प्रॉपर आपको लग रहा है कि हाँ ये सभी प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच हो रही है, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव भी सेम है, टारगेट पॉपुलेशन सेम है, कहीं पर एरर नहीं है, राइट ना, तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वे के अंदर, हमारे रिसर्च वर्क के अंदर उसको कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट। तो इसके लिए उसका इवेल्यूएशन करना जरूरी है, राइट। तो ये शॉर्ट नोट में हमें क्वेश्चन आ सकता है 6 या तो 7 मार्क्स के लिए, राइट। तो वी हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली।